Hallelujah. Hallelujah. Now we saw in the morning that Jesus kept himself holy unto the Lord. प्रभु यीशु ने परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को पवित्र रखा, ये बातें हमने सुबह देखी। We can also keep ourselves holy, following in the footsteps of Jesus. प्रभु यीशु के पीछे चलते उन्होंने जो किया वो करके हम भी अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। So from today onwards, इसलिए आज से we will not be careless about our lives. हम अपने जीवनों के बारे में बेदरकार नहीं रहेंगे, We'll be careful. बहुत सावध रहेंगे। Amen. आमीन। And careful in what sense? और किस तरह से सावध रहेंगे? We'll pray, प्रार्थना करेंगे, fast, उपवास cry करेंगे, unto the Lord. परमेश्वर के आगे रोएंगे Have a deep desire to be holy. और बहुत हृदय की गहराई से इच्छा रखेंगे कि मुझे पवित्र बनना है। Amen. आमीन। We saw that Jesus had to be like the lamb that was born in the tower of the flocks. That was Bethlehem. जिस तरह से यीशु मसीह का जन्म मेमने के घुम्मट के अंदर हुआ बेथलेहम में, And then after the lamb was born, it had to be in the vicinity of that tower for 1 year. और 1 साल तक उस मेमने को उसी इलाके में रहना था, निगरानी के नीचे, So that the shepherds could keep a watch over them. ताकि चरवाहे उनके ऊपर नजर बनाए रख सके। Not during daytime only, सिर्फ दिन में ही नहीं, day and night. दिन और रात। That is why when the angel came, it was night time and the shepherds were keep a watch over the flock. और इसीलिए जब दूतों ने आकर चरवाहों से बात करी, वो रात का समय था क्योंकि चरवाहे बाहर भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। Amen. आमीन। Day and night they were under the watchful eyes of the shepherds दिन और रात चरवाहों की निगरानी में ये भेड़ें रहती थी for 1 year. 1 साल तक। Only in that vicinity they could roam around. बस उनका जो इलाका था उसी के अंदर में घूम फिर सकते थे। They wouldn't be allowed to go out so that they may fall in some ditch and hurt themselves. बाहर जाना इसलिए उनके लिए नहीं बाहर जा सकते थे क्योंकि निगरानी से बाहर गए, कोई चोट लग गई, गिर गए, Maybe torn apart by wild animals. या तो जंगली जानवर उनको फाड़ खाए, Whatever. कुछ भी हो सकता They है। had to be in that vicinity. और इसीलिए निगरानी हो वहीं तक रहना है। And all the time the shepherds watching over them. और हर समय चरवाहों की नजर उन भेड़ों पर। Similarly, उसी तरह से Jesus as Lamb of God प्रभु यीशु जो परमेश्वर के मेमने थे, was in the vicinity of Nazareth all the time, हर समय वो नाजरेत के इलाके में ही थे, so that he would never be out of the eyesight of the rabbis. ताकि रब्बियों की नजर से कभी भी दूर न चले जाएं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And why he needed to be in the eyesight of the rabbis? और क्यों रब्बियों की दृष्टि के नीचे रहना था? Yes? क्यों? Huh? So that a certificate of holiness could be had from not anyone but the appointed people of God. ताकि परमेश्वर ने जिन लोगों को नियुक्त किया उनके पास से यीशु मसीह पवित्र है वो सर्टिफिकेट लिया जाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Our God, our Savior Jesus is perfect. हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु संपूर्ण है। Now we are going to look into some other points. थोड़े दूसरे मुद्दे देखते हैं। Now people claim that Jesus went to India, Kashmir, went to Tibet, also other places like Egypt and wilderness like the Essenes, लोग and so दावा on and on and on. और लोग अलग अलग दावा करते हैं। कोई कहता है कश्मीर आए, कोई कहता है तिब्बत गए, कोई कहता है इथियोपिया गए, मिस्र गए, या इसीन्स के साथ जंगल में चले गए, अलग चले गए उनके साथ। You want to believe such people who have not seen Jesus in their lifetime?
जिन्होंने यीशु मसीह को देखा ही नहीं, फिर ऐसे लोग अगर यीशु मसीह के बारे में कुछ कहे तो कोई मानेगा क्या? आप मानोगे? They don't even read the Bible. अरे बाइबल ही नहीं पढ़ते लोग, They're assuming. ये सिर्फ कल्पना करते हैं। But I'm going to prove through the Bible, it wasn't so. बाइबल से बताऊंगा ऐसी कोई बात थी ही नहीं। The people that watched the life of Jesus, जो लोग यीशु मसीह के जीवन को देख रहे थे, they could not find any fault in him. उन्हें उनमें कोई दोष मिला ही नहीं। And also one more thing. और एक बात, Let's read in the word. वचन में पढ़ते हैं, John chapter 7 verse 14 to 16. यूहन्ना 7 14 15 और 16। यूहन्ना 7 14 15 और 16। यूहन्ना 7 14 15 और 16। Yes. जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। Very clearly, it is testified by the people who lived around Jesus that Jesus had never been to any school. जो लोग यीशु मसीह के आसपास रहते थे वही गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह कभी स्कूल में गए ही नहीं हैं, तो फिर ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? He did not even go to school in his town. Forget about going to India and Tibet. If he had, then people would know. नाजरेत में ही स्कूल में नहीं गए तो इंडिया या तिब्बत की बात तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो था लोगों के सामने था, ये स्कूल में गया ही नहीं है। Amen. आमीन। Oh, I think this verse is enough to stop the mouths of all these people. मुझे लगता है ये आयत काफी है लोगों का मुंह बंद करने के लिए। He didn't go anywhere to study. वो पढ़ाई करने के लिए कहीं गए He ही didn't नहीं, go anywhere to gain wisdom. बुद्धि प्राप्त करने कहीं गए ही नहीं। It was not his testimony, ये उनकी गवाही नहीं थी, but the people who lived around him, they लेकिन लोग testified. जो वहां पर उनके आसपास रहते थे उनकी गवाही थी। How can he have such wisdom and knowledge? इतनी बुद्धि और ज्ञान कहां से He आया, has never been to any school. जबकि ये कोई स्कूल में गया ही He's नहीं। never been to India. ये कभी इंडिया गया ही He's नहीं है, never been to Tibet. ये तिब्बत गया ही नहीं He's है, never been to Essenes. ये इसिनिस के साथ कभी रहा ही He नहीं, has not gone anywhere. ये कहीं गया ही नहीं He है। is all the time in our sight. हमारे सामने हमेशा ये रहता And है, yet he has that wisdom. और फिर भी इतनी बुद्धि और ज्ञान। Any argument on this? अब इसके ऊपर क्या दलील करेंगे? All rubbish on YouTube YouTube के ऊपर कचरा ही आता है, can be cancelled only through this one verse. ये एक ही आयत से सब कचरा निकाल फेंकने का। He never went to any school. वो कभी कोई स्कूल में गए ही नहीं। Amen. आमीन। He never went to any sage. कोई संत के पास गए ही He नहीं, never went to any school in foreign country. विदेश में कोई स्कूल में गए ही नहीं, He was in Nazareth all the time. हमेशा नाजरत में ही थे। I don't think I should give all other reasons, फिर This is दूसरे- enough. मुझे लगता है दूसरे क्या कारण क्या दूं आपको, यहीं पे बात खत्म। Am I right? सही बात है। Yet I'll give you some more examples. फिर भी मैं कुछ और उदाहरण देता हूं। There was no need for Jesus to go to any school. प्रभु यीशु को जरूरत ही नहीं थी कोई स्कूल में जाने की। There was no need for Jesus to go to the areas which were very popular for knowledge and wisdom. जो ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रख्यात जगहें थी उन समय, वहां पर जाने के लिए यीशु मसीह को कोई जरूरत ही नहीं थी। First reason for that. पहला कारण, Let's go to the book of Proverbs chapter 8 verses 22 to 25. देखें नीति वचन 8 22 से 25। नीति वचन 8 22 से 25। Yes. नीति वचन 8 22 से 25। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं, जब न तो गहरा सागर था
और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। You know, these words talk about or are talked by ये आयतें कौन बोल रहा है? wisdom. बुद्धि। Wisdom is talking to us. बुद्धि हमसे बात कर रही है। Wisdom says बुद्धि कह रही है that God gave me birth first. पहले परमेश्वर ने बुद्धि बनाई, मुझे उत्पन्न किया। Later on, बाद में in that wisdom, वही बुद्धि में God created everything परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। else. Go home and read the 8th chapter properly. घर जाके 8वां अध्याय पूरा आप पढ़ लीजिएगा। Amen. आमीन। So God created wisdom. परमेश्वर ने बुद्धि बनाई। Who was that God? वो कौन सा ईश्वर था? The creator. उत्पन्न करता। Let's go to the book of John, देखें यूहान chapter 1, पहला अध्याय verse 3. तीसरी आयत। Chapter 1, verse 3. यूहान 1 और 3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। This verse talks about Jesus Christ. ये आयत प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। Jesus Christ is the creator. यीशु मसीहा उत्पन्न करता He परमेश्वर created है। everything. सब कुछ उन्होंने बनाया। Everything that is created is not created without Jesus. जो कुछ उत्पन्न हुआ वो यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। Amen. आमीन। That is what it means. इसका मतलब ये है Everything was created by Jesus. सब कुछ यीशु मसीह ने ही उत्पन्न किया है। So when we read about the birthing of wisdom, और इसलिए जब हम ये देखते हैं कि बुद्धि को बनाया गया, who created it? तो बुद्धि को किसने बनाया? God himself, Jesus Christ. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बनाया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Because everything that was created by Jesus. क्योंकि जो कुछ उत्पन्न किया गया यीशु मसीह ने ही उत्पन्न किया। So what did Jesus create in the beginning? तो यीशु मसीह ने आरंभ में क्या उत्पन्न किया? Wisdom. बुद्धि। He is the creator of wisdom. बुद्धि को बनाने वाला ही वो है। There was no need for God to go through school. और इसीलिए फिर यीशु मसीह को स्कूल में जाने की कहाँ जरूरत है? He is the creator of अरे wisdom. बुद्धि बनाने वाला वो है। There's no need for him to go to India. तो उनको इंडिया जाने की क्या जरूरत है? There's no need for him to go to Tibet. तिब्बत जाने की उनको क्या जरूरत He है? is the creator of wisdom. वो बुद्धि के उत्पन्न करता है। Amen. आमीन। For wisdom, we have to go to him, not he going to the intellectuals of this world. हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह को थोड़ी ना बुद्धिशाली लोगों के पास आना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You understand me? समझ में आ रहा है? So does that nullify the fake things of the people who claim that Jesus had gone to Kashmir or Tibet? यहीं से लोग जो झूठी बातें फैलाते हैं, यीशु मसीह ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए तिब्बत गए, कश्मीर गए, ये बात यहीं से खत्म हो जाती है। There is no need for Jesus to go anywhere. यीशु मसीह को बुद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। And I said one thing. और मैंने एक बात कही, He did not even go to a school in Nazareth. नाजरेत में ही वो कोई स्कूल में नहीं गए। Otherwise, people would have said, नहीं तो लोगों ने कहा होता, you know, that teacher in that school is so intelligent. आपको पता है वो स्कूल का टीचर इतना बुद्धिशाली है, He gave very good training to Jesus. इसलिए देखो यीशु मसीह को कैसे तैयार किया। And so Jesus is wise because of that teacher. यीशु मसीह इसलिए बुद्धिशाली है वो शिक्षक की वजह से। You understand me? समझ में आ रहा है? Jesus didn't go to any school प्रभु यीशु इसलिए कोई स्कूल में गए ही नहीं, because there was no need for him to go to school. क्योंकि स्कूल में जाने की उन्हें कोई He is the जरूरत थी नहीं। creator of wisdom. वही बुद्धि के उत्पन्न करता है। Hallelujah. हालेलुया। Say once again, come on everyone. He is the creator of wisdom. हर व्यक्ति बोले यीशु मसीह ही बुद्धि के उत्पन्न करता है। One more time. यीशु मसीह ही बुद्धि के उत्पन्न करता है। Hallelujah. हालेलुया। All other worldly wisdom is like garbage for him. और उनके सामने दुनिया की जो बुद्धि है वो तो कचरे के समान है। Even certain things for me, which is counted as intelligence by other people, is really garbage.
मेरे लिए भी लोग जिनको बहुत बुद्धि बुद्धि वाली बात करते हैं, मेरे लिए भी वो बातें कचरे के समान हैं। You know why? पता है क्यों? I know the word. और एक वचन, No, I know the word. क्योंकि मैं वचन जानता I know हूं, the Bible. मैं बाइबल जानता हूं, I have the wisdom of God. मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है, And in that wisdom, और वो बुद्धि I में can say मैं कह सकता that हूं is garbage. ये कचरा है, That is foolishness. ये मूर्खता है, That is, talks of the fools. ये मूर्खों की बातें हैं। And that's why I'll say और इसलिए मैं the कहूंगा, claims of people that Jesus went to Tibet and Kashmir is foolishness. और इसलिए मैं कहूंगा कि लोग अगर कहते हैं यीशु मसीह तिब्बत गए या कश्मीर गए, ये मूर्खों की बातें, मूर्खता है। Because I know my God. क्योंकि मैं अपने ईश्वर को I जानता know हूं, my God through the word. मैं वचन के द्वारा अपने ईश्वर को जानता And हूं, my word says और वचन कहता He है is the creator of वो तो wisdom. बुद्धि क्या उत्पन्न करता है। Hallelujah. हालेलुया। So there is no need for the source of wisdom to go to any school, any place to get wisdom. और इसलिए जो बुद्धि का सोता है, उसे कोई जरूरत नहीं बुद्धि प्राप्त करने के लिए कोई स्कूल में या कहीं जाए। Amen. आमीन। Do you understand me? समझ में आया इतना? अगर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बुद्धि प्राप्त करने के लिए तिब्बत गए, कश्मीर गए, इथियोपिया गए और मिस्र देश में गए, इधर गए उधर गए, ये बात इसीलिए बोगस है क्योंकि बाइबल के हिसाब से बुद्धि बोलती है मुझे उत्पन्न किया गया, और यही बाइबल हमें सिखाती है यीशु मसीह ही उत्पन्न करता है, यानी यीशु मसीह ने ही बुद्धि को उत्पन्न किया। अब जो बुद्धि को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, उसे बुद्धि प्राप्त करने के लिए कहां जाने की जरूरत है? उल्टा है, हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के पास जाने की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह जो बुद्धि का उत्पन्न करता है, उनको कहां जाने की जरूरत है? इसलिए यह दावा कि यीशु मसीह बुद्धि प्राप्त करने के लिए इधर गए उधर गए एकदम बोगस और बेकार है। आमीन, आमीन। One more verse. और एक आयत, 1 Corinthians chapter 1 verse 23-24. पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 23 और 24 आयत। Yes. परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। Hallelujah. हालेलुया। For those who are saved, जो बच गए हैं, they have received Jesus in them. जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, And as a human being, और इंसान के स्वरूप में, he is wisdom of God. वही परमेश्वर की बुद्धि है। That's the difference between knowledge and wisdom. बुद्धि और ज्ञान में फर्क है। Okay? Wisdom is had only through experience. बुद्धि अनुभव से आती है, Knowledge you can get from the books. और ज्ञान पुस्तक पढ़ के भी मिल सकता है। So he didn't take any knowledge from the books. और इसलिए पुस्तक से कुछ पढ़ के ज्ञान नहीं He लिया, already had wisdom. पहले से ही वो ज्ञान था। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So he, as a human being, इसलिए इंसान के स्वरूप में he is regarded as wisdom of God by believers. और इसलिए विश्वासियों के लिए वही परमेश्वर का ज्ञान है। Jesus Christ. यीशुवा मसीहा, Jesus Christ is the wisdom of God. यीशुवा मसीहा परमेश्वर का ज्ञान है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is the wisdom of God. वो परमेश्वर का ज्ञान है। Is there any need for the one who is wisdom of God to go anywhere to get wisdom? जो खुद परमेश्वर का ज्ञान है, उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत है क्या? No, sir. है ही नहीं। People have to run to such a person to get wisdom. लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाने की जरूरत है। Amen. आमीन। He was the wisdom of God वो- in human form. मनुष्य के स्वरूप में वे परमेश्वर का ज्ञान थे। In God form, ईश्वर के रूप में he was a creator of वो wisdom. ज्ञान के उत्पन्न करता And था, in human form, लेकिन मनुष्य स्वरूप में he was the wisdom of God. वही परमेश्वर का ज्ञान थे। Hallelujah. आमीन। So there was no need for Jesus to go anywhere to get wisdom. इसलिए प्रभु यीशु को कोई जरूरियात नहीं थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की। Now, we have a very good example in the word. वचन में बहुत अच्छा उदाहरण है। They say Jesus went to Tibet, Kashmir, or any other place after 12 years of age. 12 साल की उम्र के बाद यीशु मसीह तिब्बत गए, कश्मीर गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसा अगर कोई कहता है
then I can say they are wrong तो मैं कहूंगा गलत है, because something is written about Jesus when he was 12 years क्योंकि age. 12 साल की उम्र में यीशु मसीह क्या करते थे लिखा हुआ है। Let's go to the book of Luke chapter 2 verses 46 47. लूका 2 46 47। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उनकी सुन रहे थे ये सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। Jesus was talking with people in the temple मंदिर में यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे and wisdom was coming out of his mouth. और उनके मुंह से ज्ञान की बातें बाहर आ रही थी। Such wisdom ऐसी ज्ञान की बातें that it amazed the teachers of the law who were present there. कि लिखा हुआ है कि जो उपदेशक थे वे खुद इनको सुनकर चकित रह गए। You understand me? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? The wisdom that came out of the mouth of a 12-year-old Jesus 12 साल के यीशु मसीह के मुंह से जो ज्ञान की बातें बाहर आ रही हैं was so amazing यही लोगों को चकित करने वाली थी that people were astonished. कि लोग चकित रह गए। Before going to Tibet or India, तिबेट या भारत जाने से पहले ही he had amazed people through his wisdom. जाने से पहले ही अपने ज्ञान से लोगों को चकित कर दिया यीशु मसीह ने। Do you understand my argument? दलील समझ में आ रही है? Was there any need for 12-year-old Jesus to travel after that? That victory in the temple at Jerusalem, the seat of God as well as the biggest religion of that time? यीशु मसीह अगर 12 साल की उम्र में ही जहां पर वचन के सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग यरूशलेम में रहते थे, अगर उनको अपनी बातों से चकित कर दें तो अब आगे पढ़ाई करने के लिए कहां जाएं? He will not go there to learn. वो सीखने के लिए नहीं He जाएंगे, will go to teach. सिखाने जाएंगे। But that's not the reason for what he came. लेकिन इसके लिए वे आए नहीं थे। He always said, I have come for the Jews. वो हमेशा कहते थे मैं यहूदियों के लिए आया हूं। Why? क्यों? He had to live amongst the Jews क्योंकि यहूदियों के बीच में उन्हें रहना जरूरी था and prove that he is the wisdom of God. और सबूत देना कि मैं ही परमेश्वर का ज्ञान He हूं, is the lamb, perfect lamb of God without blemish, मैं ही निर्दोष परमेश्वर का मेमना हूं and not go out of the vicinity of Nazareth. और नाजरेत की सीमाओं से बाहर उनको नहीं जाना था। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Just imagine confounding Pharisees and scribes of that time. आप अंदाजा लगाओ उस समय के शास्त्री और फरोशियों की निगरानी आप पर हो और उनके बीच में आप रह रहे हो And now, and you amaze them और आपसे वे चकित हो जाएं through your talks. आपकी बातों के द्वारा। You will say, I need to sit at his feet and learn from him. आप सुनोगे फिर कहोगे अरे नहीं नहीं भाई मैं इसको क्या सिखाऊं, मैं इसके चरणों में बैठ जाऊं और मैं इससे सीखूं। Amen. आमीन। There was no need for Jesus to go anywhere to learn. सीखने के लिए यीशु मसीह को कहीं भी जाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। Amen. आमीन। While he was in Nazareth, जब वे नाजरेत में थे, let's go to Luke 2, 51, 52. लूका 2 51 और 52, तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। Where? कहाँ? 51, Nazareth. नाजरत में। He grew up in Nazareth. नाजरत में वे बड़े हुए। Even if you just read literally that he grew up in wisdom, that happened in Nazareth. अगर ऐसे पढ़ेंगे कि बुद्धि में भी बढ़ते गए तो कहाँ बढ़ते गए? नाजरत में। In stature, in Nazareth. कद में बढ़ते गए तो कहाँ? नाजरत में। In favor of God, in Nazareth. परमेश्वर के अनुग्रह में कहाँ बढ़ते गए? In favor नाजरत of में। men, in Nazareth. मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए कहाँ? नाजरत में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You understand me? समझ में आ रहा है? He grew up in wisdom बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ते गए, in Nazareth. नाजरत में बढ़ते गए। Not in Kashmir. कश्मीर में नहीं, Not in Tibet. तिब्बत में नहीं, Not anywhere else. और कहीं भी नहीं, But in Nazareth. नाजरत में। Do you understand me? समझ में आ रहा है? Okay, now you may have a question. You said Jesus is the wisdom of God.
अभी आप कहेंगे यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। How come he grew up in wisdom? अभी आप कहेंगे यीशु मसीह ही अगर परमेश्वर का ज्ञान है तो वो ज्ञान में बढ़ते कैसे गए? That's a question. प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। If he is the source of wisdom, अगर वही ज्ञान का श्रोता है then how it is written here that he grew up in wisdom? तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि वो बुद्धि में बढ़ते गए? That's a question that should, give us more questions. ये प्रश्न से और प्रश्न होने चाहिए। He was creator. He was birther of wisdom बुद्धि को, as God. ज्ञान को उन्होंने ही रचा, उन्होंने ही उत्पन्न किया As God. ईश्वर के तरह। As man, इंसान के रूप he में was the wisdom of God. वे परमेश्वर का ज्ञान थे And he proved it at the age of 12. और 12 साल की उम्र में सबूत भी दे दिया That he was wise enough to talk to any intelligent man. कि किसी भी बुद्धिशाली व्यक्ति से वे बात कर सकते थे। And he would talk so intelligently that the listeners would be amazed at his और talks. उनकी बातों में इतना ज्ञान और बुद्धि रहती थी कि लोग सुनने वाले चकित रह जाते थे। Then how come it is written that he grew up in wisdom? तो फिर ऐसा क्यों लिखा है वो बुद्धि में बढ़ते गए? Only one thing, see, God knows everything. परमेश्वर तो सब जानते हैं। Amen. आमीन। The quality of God is that he knows everything. ईश्वर का गुण है कि वो सब जानते हैं। Then what was that he was inheriting here in Nazareth? तो फिर ऐसी कौन सी बात थी नाजरत में कि जिसमें वे बढ़ते जा रहे थे? What was that wisdom? ये कौन सी बुद्धि थी? I said wisdom is not knowledge. Knowledge is gained through the books. मैंने आपसे कहा कि किताबें पढ़कर ज्ञान मिल सकता है। Listen to very attentively. बहुत ध्यान से सुनना। He was gaining wisdom, लेकिन वे बुद्धि प्राप्त कर रहे थे, not knowledge. ज्ञान नहीं। He was gaining wisdom. बुद्धि प्राप्त कर रहे थे। Gaining wisdom in the sense इसका क्या मतलब हुआ? he was getting experience after experience and he was getting wisdom. यानी कि अनुभव से अनुभव ऐसे प्राप्त कर रहे थे जिसके द्वारा बुद्धि मिल रही थी। Okay. Now, God is sitting up there in heaven. परमेश्वर तो स्वर्ग में है, He knows everything, वे सब कुछ जानते हैं, but he doesn't have one experience. लेकिन एक अनुभव नहीं है। He knows all the difficulties, trials and tribulations and sorrows and all the negative things that a human being experiences. और मनुष्य क्या क्या समस्याओं का सामना करता है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। Amen. आमीन। Because he has eyes to see. क्योंकि उनकी आंखें देख सकती हैं। And the Bible says his eyes run to and fro on the face of this earth. और बाइबल कहती है उनकी नजर पूरी दुनिया पर घूमती रहती है। Nothing escapes his eyes. उनकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं जाता है। Amen. आमीन। So he knows what trials I have. और इसलिए उनको पता है मेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। He knows how much broken heart Gabriel has. उसको पता है गेब्रियल का हृदय कितना टूटा हुआ He है। knows your and my problems आपकी completely. और मेरी सभी समस्याओं को वे जानते हैं। Nothing is hidden from him. उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। Amen. आमीन। He knows he is God. वो जानते हैं क्योंकि वे ईश्वर हैं। But he doesn't know your and my experience. लेकिन वे आपके और मेरे अनुभव को नहीं जानते हैं, He has never been in your and my shoes. क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके और मेरे जूते नहीं पहने हैं। Gabriel may talk about his problems to me, गेब्रियल उसकी समस्या मुझे बता सकता है and I will say yes. और मैं कहूंगा अच्छा अच्छा ऐसा Understand, I है। ओहो, understand. मैं समझ रहा हूँ। Yes, you are really having big problem. नहीं, सही में बहुत बड़ी समस्या, मैं समझ रहा हूँ। Your heart is broken. तुम्हारा हृदय टूटा है, मैं समझ रहा हूँ। But still the emotions, the feelings, and the trouble within himself, I cannot experience. फिर भी उसके अंदर क्या तूफान मचा है, क्या भावनाएं हैं, वो मैं नहीं समझ सकता। I know his problems, उसका प्रश्न मैं जानता हूं, but I don't have experience of his problems. लेकिन वो जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव मेरे पास नहीं है। Amen. आमीन। Similarly, God, इसी तरह से ईश्वर, He is a spirit. वो तो आत्मा है, He lived up there. वो ऊपर रहते He हैं, sees your and my problems. आपकी और मेरी समस्याओं को वे देखते हैं, But He became man like you and me. लेकिन आपके और मेरे जैसे इंसान वे बने।
He became man like you and me. आपके और मेरे जैसे इंसान बने हैं। In other words, he stepped down and wore our shoes. इसका दूसरी तरह से मतलब वो नीचे आए और हमारे जूते उन्होंने पहने, So that he may know my problem, not only know my experience. इसी ताकि उनको सिर्फ मेरी समस्या पता न चले, क्या अनुभव मैं कर रहा हूं वो अनुभव से होके वे जाएं। The heartbreak that I have. हृदय टूटना क्या होता है? Science may give all types of explanation. विज्ञान आपको ये खुलासा देने की कोशिश करे, But through those explanations, you cannot understand the broken heart. लेकिन फिर भी टूटा हृदय क्या होता है विज्ञान आपको नहीं समझा सकता। You have to have that experience which breaks your heart, and only then you can say, I understand आपका now. हृदय जिस दिन टूटेगा उसी दिन आप कहोगे हृदय टूटना क्या होता है, अब मुझे समझ में आता है। Amen. Amen. So God sitting up there as परमेश्वर वहां पर God, बैठे बैठे ईश्वर की तरह, he knew everything, सब वे जानते थे, but he had no experience. लेकिन हमारा अनुभव उनके पास नहीं था, But he became man. लेकिन वो इंसान बने। I know my sister. Gabriel is small, मेरी बहन है और मान लो गैब्रियल अभी छोटा है and mother is, making chapatis. और माँ रोटी बना रही है, That time there was no AC. तब तो एसी था नहीं, इतना पसीना, रोटी बना रही है And here comes Gabriel. और गैब्रियल आए, Mom, मम्मी mommy, मम्मी mommy, मम्मी मम्मी रोटी बना दे, mommy. मम्मी। And then got one tight slap on his face. फिर एक खींच के चाटा लगाया कि रोटी बना दे, Then Gabriel goes away from there crying. और गैब्रियल रो के चला जाएगा मैं क्या किया। I'm seeing the scene. अब मैं देख रहा हूँ What has happened? क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ, Nothing is secret from me. मुझसे छुपा नहीं है, But I cannot experience the emotions of Gabriel. लेकिन गैब्रियल क्यों रो रहा है और क्या उसके अंदर चल रहा है वो मैं नहीं समझ सकता। Do you understand me? समझ में आ रहा है? Similarly, God knew everything of us sitting up there in heaven. उसी तरह से परमेश्वर स्वर्ग में से हमारा सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ उनको पता है, But to experience what we experience, he stepped down and became a human being. लेकिन हम क्या अनुभव करते हैं वो समझने के लिए वे इंसान बने। Hallelujah. हालेलुया। That experience gave him wisdom. ये अनुभव से उन्हें बुद्धि मिली। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the book of Hebrews. इब्रानी Hallelujah. Hallelujah. Okay, we read from verse 14 14वीं आयत से पढ़ते हैं till the end. आखिरी तक, 14वीं आयत से आखिरी आयत तक। Chapter 2 of Hebrews, इब्रानी दूसरा अध्याय verses 14 onwards. 14वीं आयत से आखिरी आयत तक। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। Hallelujah. हालेलुया। He might become like you and me. सब बातों में आपके और मेरे जैसे बने, Yes. जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। Now verse 18 minutely. Read it minutely. 18वीं आयत बहुत ध्यान से पढ़ें और सुने। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। He can help you and me perfectly. आपकी और मेरी वे सहायता कर सकते हैं, Not only that he knows our suffering, क्योंकि अब वो सिर्फ हमारी समस्याओं को जानते but उतना ही as a नहीं, human being, लेकिन इंसान के he has स्वरूप में experienced those sufferings उन्होंने himself. वही दुख अनुभव किए हैं। Amen. आमीन। This is the wisdom that he was gaining ये बुद्धि वे प्राप्त कर रहे as a थे human being. इंसान के स्वरूप He knew में, everything, सब कुछ वे but जानते he थे, didn't have the experience लेकिन अनुभव नहीं था। as a human being. मनुष्य के स्वरूप में अनुभव नहीं था।
And because he became a human being, और क्योंकि वे इंसान बने, he suffered like you and me. आपकी और मेरी तरह उन्होंने दुख He सहन was किया, tempted like you and me. आपकी और मेरी तरह उनकी परीक्षा हुई, He had broken heart like you and me. आपकी और मेरी तरह उनका भी हृदय टूटा। Whatever all negative things we experience, कोई भी नकारात्मक बातें जो हम अनुभव करते he हैं, experienced. उन्होंने भी अनुभव किया, And through that experience, और उस अनुभव के he द्वारा was gaining wisdom. उनको बुद्धि मिल रही Wisdom थी। of what? किसकी बुद्धि? The sufferings of people. लोगों के दुखों में क्या होता है वो अनुभव होने And that is लगा। why verse 18. और इसीलिए 18वीं आयत That कहती है, is why he can help इसी- you and me in our suffering. इसीलिए हमारे दुख के समय वो हमारी सहायता कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He could not help us the way he wanted to living up there. स्वर्ग में ईश्वर के स्वरूप को अगर उन्होंने पकड़े रखा होता तो हमें जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं कर सकते। Because he knew, just like for engineers, theory is different from practical. जैसे इंजीनियर होते हैं उनके लिए थियरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। If you know the theory, you don't become an engineer. थियरी जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजीनियर बन गए। Do you understand me? समझ में आ रहा है? You will not even be able to handle a spanner. एक पकड़ भी आप अच्छी तरह से संभाल नहीं पाओगे। You just know the theory. आपको तो थियरी पता है बस। An engineer is engineer, complete engineer, when he knows the theory as well as he has experience. एक इंजीनियर तभी संपूर्ण इंजीनियर होता है जब थियरी भी पता है और प्रैक्टिकल भी पता है। Amen. आमीन। So Jesus knew everything up there in theory. तो यीशु मसीह ऊपर सबको थियरी में जानते थे, Now becoming a man, लेकिन इंसान बनने के द्वारा he knew everything through experience. अब अनुभव के द्वारा प्रैक्टिकल भी ज्ञान प्राप्त हो गया। Hallelujah. हालेलुया। You understand me? समझ में आ रहा That is है? why it is written that he grew up in stature and in wisdom, और इसीलिए लिखा है वे कद में बढ़ते गए, बुद्धि में बढ़ते गए, also in the favor of God and favor of और men. ईश्वर और इंसान के अनुग्रह में बढ़ते चले Not that गए। he was gaining wisdom ऐसा नहीं कि वो बुद्धि प्राप्त कर रहे थे from schools, स्कूल में से, from other things, अन्य बातों में से, but he was gaining wisdom of the sufferings of people. लेकिन इंसान क्या सहन करता है ये अनुभव वे प्राप्त कर रहे थे As a man. इंसान के स्वरूप में। Amen. आमीन। Being descending from God into human form in your and my shoes. वे ईश्वर थे लेकिन इंसान के स्वरूप में आपके और मेरे जूते उन्होंने पहन लिए। Hallelujah. हालेलुया। And so he knows me perfectly. और इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह He knows जानते my हैं, suffering properly. मेरा दुख वो समझते हैं And that's why he can help me. और इसलिए वे मेरी सहाय And कर सकते I हैं। can also depend upon him because I know he as a human being knows my और suffering. मैं भी पूरा भरोसा उनके ऊपर रख सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं उन्होंने सहन किया है, जीता है, वो मेरी सहाय कर सकते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Any question on this? इसके ऊपर किसी को कोई प्रश्न है? I didn't want this point to be left out. मेरी इच्छा नहीं थी यह मुद्दा छूट जाए, Because if he is the creator of wisdom and he is the Jesus in human form is wisdom of God, then how come it is written in chapter 2 verse 52, he grew up in wisdom and in stature. अब बुद्धि बनाने वाले वे हैं ईश्वर के स्वरूप में, इंसान के स्वरूप में वे परमेश्वर का ज्ञान है, तो फिर जब छोटे से बड़े हो रहे थे कौन सी बुद्धि वे प्राप्त कर रहे थे ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये समझाया। Amen. आमीन। He grew up experiencing, he had the theory, but he was experiencing your and my suffering. वो वे हमारे सभी प्रश्नों को वे देख सकते थे, जानते थे, लेकिन इंसान के स्वरूप में आकर उसको अनुभव किया। That is why it is written he grew up in wisdom. और इसीलिए लिखा है बुद्धि में भी बढ़ते चले गए, Because he already had knowledge. क्योंकि ज्ञान तो पहले से था ही। Amen. आमीन। He knew, ज्ञान तो पहले से था ही, but no experience. लेकिन अनुभव नहीं था। Just like engineer, he Engineer- knows the theory. थियरी जानता है, He has to hold a spanner. लेकिन पकड़ो He has पहले to work on lathe machine और लेथ मशीन पे काम or करो whatever. और जो भी हो करो, And then he becomes an engineer. फिर पूरा इंजीनियर वो बनता है। Amen. आमीन। So this Savior who lived up there became complete Savior by coming down on this और earth. इसलिए यही उद्धारकर्ता जो ऊपर हमारे ईश्वर थे, हमारे उद्धारकर्ता, वे इंसान बने संपूर्ण उद्धारकर्ता बनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's take one more point. और एक मुद्दा ले लें, Isaiah chapter 11 verses 1 and 2. यशाया 11 1 और 2। Yes. यशाया 11 1 और 2। तब यिशै के
ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। This prophecy is about Jesus Christ. ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। Jesus belonged to the family of Jesse. प्रभु यीशु यिशै के परिवार से थे। Amen. आमीन। And then it is written, he would be like a shoot. और लिखा है तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। Let me explain. Shoot is the beginning of a plant that's come out of a dead wood. जमीन के अंदर बीज होता है, जब वहां से पौधा उगने लगता है तो जमीन के बाहर जो पहली चीज दिखाई देती है वो शूट है। Yes. And this prophecy is about a shoot coming out of a dead stump. एक मरा हुआ लकड़ा, उसमें से जान आ रही है, ये भविष्यवाणी है। One more time. Please explain, brother. मरे हुए लकड़े में से कोई डाली नहीं निकलती, उसके ऊपर कोई पत्ते नहीं लगते हैं, लेकिन मरा हुआ, ये भविष्यवाणी इस बारे में है कि मरा हुआ लकड़ा है, वहां पे जान आ रही है। तो पहला जो उगता दिखाई देता है उसको इंग्लिश में शूट बोलते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So this prophecy is about Jesus Christ who belonged to the family of Jesse. ये जैसी के परिवार से यीशु मसीह आने वाले थे, इसके लिए इसके संबंध में ये भविष्यवाणी है। He would come out as a shoot on dead trunk or tree. मरे हुए पेड़ या तो लकड़े में से जान आ रही है, वैसे यीशु मसीह आएंगे। Nazareth was just like dead town. नासरत वो मरे हुए शहर के समान था। And Jesus grew up there यीशु मसीह वहीं पर बड़े हुए, as a shoot. एक शूट के स्वरूप में। Amen. आमीन। Proving सबूत देते हुए that there is still hope in this dead trunk. कि इस मरे हुए लकड़े में अभी भी आशा है। You understand me? समझ में आ रहा है? It's not completely dead. A shoot has come out. ये आपको लगता है संपूर्ण मर गया, नहीं मरा, देखो अभी भी जान है। I gave this message, I think, Christmas Day in Ahmedabad. शायद अहमदाबाद में क्रिसमस के दिन ये संदेश मैंने दिया था, Yeah, maybe 1 or 2 years, 2-3 years एक back. 2-3 साल पहले शायद। So I don't want to repeat that. पूरा दोहराऊंगा नहीं। So, but this means that it was a dead tree, and from the dead tree comes a shoot. इसका मतलब पेड़ मर चुका है, लेकिन फिर भी उसमें से जान आ रही है। Dead tree trunk is Nazareth. मरा हुआ लकड़ा वो नाजरत है। What good can come out of Nazareth? वो नाजरत में से क्या अच्छा आ सकता है? It's dead. मरा हुआ है, That's given in the Bible. बाइबल में दिया हुआ है। It's dead. मरा हुआ है, What good can come out of it? उसमें से अच्छा क्या आ सकता है? Who said that? किसने कहा? I wanted to ask people from anyway, Nathaniel. नथानियल ने कहा, He said that. उसने कहा What good can come out of Nazareth? नाजरत से अच्छा क्या आ सकता है? Why? क्यों? The meaning of Nazareth is also dead trunk. क्योंकि नाजरत का मतलब होता है मरा हुआ लकड़ा। What good can come out of Nazareth? नाजरत में से क्या अच्छा आ सकता है? A shoot has come out. लेकिन जान आई है, कुछ तो Jesus has come out. आई। यीशु मसीह आए। What good can come out of Nazareth? नाजरत से क्या अच्छा आ सकता है? Andrew says, come and see. नाथानियल क्या होता है? आकर देख। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। फिलिप ने नाथानियल से कहा कि देख। So this prophecy, chapter 11, verse 1, is about Jesus Christ. इसलिए यशाया 11:1 और 2 यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, Where he would sprout as a sprout कहां पर वो जान लाएंगे? on a dead trunk. मरे हुए लकड़े पर, That is Nazareth. जो नाजरत है। Perfect prophecy about Jesus. यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण भविष्यवाणी। And then it doesn't stop there. और फिर वहां पर रुकते नहीं। Verse 2. दूसरी आयत में क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। This shoot, that is Jesus Christ, ये यीशु मसीह जो मरे लकड़े में जान लाए हैं, understanding, wisdom, counsel, spirit of counsel, ज्ञान, बुद्धि, समझ,
का आत्मा, all these spirits will rest upon him. ये सभी आत्मा यीशु मसीह पर ठहरे रहेंगे। Amen. आमीन। There is no need for Jesus to go anywhere. तो यीशु मसीह को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। The spirit of wisdom will be upon him. बुद्धि की आत्मा उन पर The होगी, spirit of knowledge would be upon him. ज्ञान की आत्मा उन पर The होगी, spirit of counsel would be upon him. समझ की आत्मा उन पर होगी। Oh, there is no need for Jesus to run here and there to gain knowledge तो or यीशु wisdom. मसीह तो ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को यहाँ वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। Came वे आए, with the spirit of wisdom. बुद्धि की आत्मा लेकर ही आए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So there is no need for Jesus to go to India. और इसलिए इंडिया आने की जरूरत यीशु There's मसीह no को है need for नहीं। Jesus to go to Tibet. तिबेट जाने की जरूरत यीशु मसीह को है ही He नहीं। already had the wisdom of God in him. उनके अंदर पहले ही बुद्धि और ज्ञान की आत्मा थी। Not just wisdom, सिर्फ बुद्धि नहीं, wisdom, बुद्धि, understanding, समझ counsel, और युक्ति, knowledge, ज्ञान, fear of the Lord, परमेश्वर का भय and might. और पराक्रम। He came with all these things. He did not gain all these things while on earth. पृथ्वी पर आकर ये सब बातों को प्राप्त नहीं किया, लेकर ही आए थे। He came along with that. ये Hallelujah. लेकर ही आए थे। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus, there was no need for him to go anywhere to gain wisdom. और इसीलिए ये सब प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। Amen. आमीन।